Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics, Jagannath International Management School, Vasant Kunj. I welcome you all to my YouTube channel, Dr. Khan Math Studies. Today I am going to create a video on marginal cost and average cost, which is very important topic for the business mathematics. And this topic is important because one question is compulsory from this topic for university interim examinations. Okay, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. ओके, सो दैट यू कैन गेट द नॉलेज free from this channel and you can learn mathematics, especially business mathematics from this channel. Okay. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द मार्जिनल कॉस्ट और व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट फंक्शन. ओके, कॉस्ट फंक्शन सिंपली जैसे कि आपको पता है कि जब आप किसी कंपनी जब कोई कंपनी अपना फंक्शन बनाती है, राइट, अपने कॉस्ट के बारे में या फिर इनपुट आउटपुट के बारे में, तो उसको कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है बेसिकली. राइट. अब मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कॉस्ट फंक्शन सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये क्या इसको बोला जाएगा? ये कॉस्ट फंक्शन इसको बोला जाएगा. अब सवाल ये उठता है कि मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट आपके लिए नया होता है. देखना, ये टॉपिक ना आप लोगों ने आई थिंक बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, तो उसी का रेफरेंस लेके यहाँ पर आपको ये लर्न करना होगा. क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पोर्शन आता है बिजनेस मैथमेटिक्स में. ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द मार्जिनल कॉस्ट हेयर? मार्जिनल कॉस्ट मीनिंग इज द कॉस्ट incurred in producing one more unit of output by a business or producer. Okay, in economics or mathematics, marginal cost is critical in understanding how production decisions affects total cost and profitability. Profitability. Okay, marginal cost is defined as the change of the total cost due to producing one more unit. It examines the changes in cost associated with the variable cost of producing additional items, which include items such as raw materials and labor. Although fixed costs are kept constant in this instance, marginal cost analysis is very important for determining whether increasing output is going to increase total profitability or decrease total profitability. Okay, now what do you mean by the marginal cost formula? The marginal cost formula quantifies how much total cost increases when output is raised by one unit. Standard marginal cost formula, when MC is equal to marginal cost, ATC stands for change in total cost, and AQ, change in quantity produced. राइट. कैलकुलस बेस्ड मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है? दिस मीन्स मार्जिनल कॉस्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट with respect to the output. Key points: fixed costs do not affect marginal cost, only variable costs change as output changes. Now, how to calculate the marginal cost? This method is used when the total cost function is given as an equation formula. स्टेप बाय स्टेप यहां से आप सीख सकते हैं. एक्सप्रेस द टोटल कॉस्ट फंक्शन TC या फिर CX इज इक्वल टू FQ. Differentiate the function with respect to Q. Substitute the required output level into the derivatives. So basically, this is the theoretical discussion about the average cost, marginal cost and cost function. Okay. अब बेसिकली मैं बात करता हूं कि किस तरीके से आप इसको ना मैथमेटिकली आप इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये सब ना आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. ओके. तो अब मैं बात करता हूँ इसमें कि यहाँ पर ना आप कैसे शो करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे और क्या मैथमेटिकली फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द वाइट बोर्ड, क्योंकि वाइट बोर्ड पर ही हम लोग काम करते हैं, वहीं से कुछ हो पाता है. ठीक है. और वहीं से बेसिकली समझ में आता है. ठीक है. ओके. तो जस्ट वेट.
ओके। तो व्हाइट बोर्ड पर हम काम करेंगे, इसमें स्क्रीन पर समझाएंगे आपको किस तरीके से आपको मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपका कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, राइट। तो कॉस्ट फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एक्स। सी एक्स, सी एक्स सच दैट आप ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन, राइट। अगेन फिर आपको करना है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होता है वो आपको देखना होगा। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू होता है कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स। कहीं कहीं है ना आपको कॉस्ट फंक्शन मान लीजिए किसी और वेरिएबल में मिलता है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट फंक्शन आपको दे दिया सी टी। क्या दे दिया आपको सी टी। सी टी इज इक्वल टू आपको दे दिया t⁻³ +2t² +5। ये आपको टी में दे दिया। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी टी डिवाइडेड बाय टी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एवरेज कॉस्ट। हम अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होता है जिसको हम एम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को वन टाइम डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आपका आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। सेम तरीके से यहां पर भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कॉस्ट फंक्शन आपका जिस वेरिएबल में दिया गया है ना उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, याद रहेगा आपको। मैंने यहां पर क्या लिखा है, एम सी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू d/dx ऑफ सी एक्स। क्यों, क्योंकि सी एक्स मेरा कॉस्ट फंक्शन है। और डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉस्ट फंक्शन है वो एक्स में दिया गया है। अगर कॉस्ट फंक्शन टी वेरिएबल में दिया गया है तो यहाँ पर एम सी कैसे निकलेगा, d/dt ऑफ कॉस्ट फंक्शन मतलब सी टी। तो जिस वेरिएबल में कॉस्ट फंक्शन गिवन है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट। Got it? So this is the mathematical formulas and this is the application of derivatives to find cost, to find average cost and marginal cost. ठीक है, अब ये हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन, ये हुआ न्यूमेरिकल फॉर्मूला। अब मैं बात करूंगा हाउ वी कैलकुलेट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर, हाउ वी कैलकुलेट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन लेके इस पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। Okay, the cost function of a firm, the cost function, the cost function a firm, of a firm is given by Cx is equal to 5x⁻³ +2x² +2x² +7. Find average cost. Find average cost, that is AC. Marginal cost. Marginal cost, that is MC, at x is equal to 4. ओके, तो ये क्वेश्चन आपके पास है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में बेसिकली देखने को मिलता है। तो एवरीबडी हैव टू प्रिपेयर द मेथड, हैव टू लर्न द मेथड, हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए सॉल्यूशन आप देखिएगा यहाँ पर। सॉल्यूशन, राइट, तो सिंपल है। गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर गिवन, what is given, cost function cx. Cx is your cost function. 5x⁻³ +2x² +7, this is your cost function. Now number one, we have to find average cost. Average cost, so then average cost
that is AC. Average cost stands for AC. Yeah, AC stands for average cost. Equal to what the formula? Cost function divided by x. क्यों divided by x? Because हमारा cost function किस में गिवन है? x वेरिएबल में गिवन है, तो यहाँ पे डिवाइड किससे होगा? डिवीजन किससे होगा? x से होगा. That will equal to 5x to the power 3 plus 2x square plus 7 divided by x आपका हो जाएगा. Now solve this. तो 5x to the power 3 divided by x plus 2x square divided by x plus 7 by x. Now simplify this. 5x square, एक पावर कम हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 7 by x. But average cost at x is equal to 4. So now average cost at x is equal to 4. AC at x is equal to 4. Very simple. Put x is equal to 4 in average cost. That will comes out 5, 4 square plus 2 into 4 plus 7 by 4. This is 4. तो 4 स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 80 आ जाएगा. 80 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 7 बाई 4. Finally 88 plus 7 by 4. It becomes 88 plus 7 by 4. सिंप्लीफाई कर लीजिए. 4 8 जा कितना होता है? 4 8 जा, लुक हेयर, 4 8 जा 32. 4 8 जा 32 प्लस 5 प्लस 3 35 हो गया, प्लस 7/2. 352 प्लस 7/4, सॉरी नॉट 2. तो 352 प्लस 7 359/4. That will be your average cost at x is equal to 4. Okay. Now, what is the second part? Second part is marginal cost, MC, at x is equal to 4. Now, we will do the marginal cost. Okay. Look here. Marginal cost at x is equal to 4. Very simple. Okay. To calculate marginal cost, what we need? We require cost function. और cost function से हम क्या करेंगे? We will differentiate cost function with respect to x, और x के respect में. Why we differentiate this with respect to x? Because the cost function is given in x variable. That's why we will differentiate this with respect to x. Okay. तो simply हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? Marginal cost के बारे में. तो MC. MC is equal to differentiation of cost function once, d upon dx of cx. Okay, now check it. D upon dx of cx stands for 5x to the power 3 plus 2x square plus 7. So I think differentiation, you know that. Okay, differentiate this 5 d upon dx of x to the power 3 plus 2 d upon dx of x square plus d upon dx of 7. तो यहीं पर आपको करना होगा. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइएगा? 5 इंटू एक्स टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आपका हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आपका हो जाएगा, और दिस इज कांस्टेंट, तो 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 आपका हो जाएगा. दिस विल बिकम 0. तो 5 3 जा 15x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x. ओके. तो इट मींस MC का वैल्यू क्या है? MC का वैल्यू है 15x स्क्वायर प्लस 4x. तो नाउ MC मींस मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 4 आपको कैलकुलेट करना है. तो इट विल बिकम, यहां पर 4 पुट कर दीजिए आप 15x स्क्वायर प्लस 4x में. तो 15x स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या आएगा? 4 आएगा. सिंप्लीफाई दिस. 15 इंटू 4 स्क्वायर मीन्स 16 हो गया. 4 4 जा 16. मल्टीप्लाई दिस.
15 6 जा या 16 5 जा 80, 16 1 जा 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 240 प्लस 16, तो फाइनली 256 विल बी द मार्जिनल कॉस्ट at x is equal to 4. So I hope you understood the method which you will use to find out the value of marginal cost or average cost. Okay. तो एक एग्जांपल और मैं कर देता हूं आपके लिए, सो दैट भी यू विल गेट फैमिलियर विद द मेथड। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा किस तरीके से आपको करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इस पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द कॉस्ट फंक्शन if the cost function of a company is given by cx is equal to x to the power 3 minus 3x square, x to the power 3 minus 3x square plus 5x plus 12 plus 5x plus 12, find MC and AC, find MC and AC at x is equal to 2. Okay. Method is simple as we discussed the previous problem. Okay. Simple method है, वही से करना है। तो given solution क्या होगा इसका? Given what is given? Cost function cx is equal to x to the power 3 minus 3x square plus 5x plus 12. Calculate average cost. तो average cost is equal to cx divided by x. तो x to the power 3 minus 3x square plus 5x plus 12 divided by x. सिंप्लीफाई कीजिए तो इट विल बिकम x to the power 3 by x minus 3x square divided by x plus 5x divided by x plus 12 divided by x. Finally, we have x square minus 3x plus 5 plus 12 by x. So this is your value. So now average cost at x is equal to 2 we have to calculate. So now एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 आपको पुट करना है कहां पर? ये जो एवरेज कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया ना इसमें पुट करना है। तो यू हैव एवरेज कॉस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स। पुट एक्स इज इक्वल टू 2 हेयर, सो 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 plus 12 divided by 2. 2 square 4 minus 6 plus 5 plus 2 6 is a 12. ओके सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 प्लस 4 10 हो गया, प्लस 5 15 माइनस 6, तो 15 माइनस 6 फाइनली इज 9। ओके तो दिस विल बी योर एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 2। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब नाउ मैं बात करता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो फॉर मार्जिनल कॉस्ट अगेन वही फॉर्मूला। मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या होना चाहिए? हमको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? कॉस्ट फंक्शंस को। वी हैव टू डिफरेंशिएट कॉस्ट फंक्शन वंस, ओके, टू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट। ओके तो अगेन गिवन हमारे पास क्या है? द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन cx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। ओके तो नाउ द mc मीन्स मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डिफरेंशिएट वंस द कॉस्ट फंक्शन cx। ओके तो फाइनली d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12।
ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थोड़ा इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। या फिर चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर थ्री माइनस थ्री डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 12। डिफरेंशिएट दिस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू हाउ मच, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू एक्स, differentiation of x square is 2x plus 5 differentiation of x 1 plus differentiation of 12 is 0. So finally we have MC, value of marginal cost is equal to 3x square minus 3 to the 6x plus 5. So now marginal cost at x is equal to 2. तो वी हैव थ्री, पुट हेयर टू, एक्स के प्लेस पर टू पुट कीजिएगा, टू स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू टू प्लस फाइव। नाउ सिंप्लीफाई द वैल्यू, तो थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर माइनस सिक्स टू जा 12 प्लस फाइव, थ्री फोर जा 12 माइनस 12 प्लस फाइव, सो फाइनली वी हैव फाइव। तो मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज योर मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज फाइव। तो गाइज ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। ओके, इट्स आई थिंक, मेरा ये मानना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का हमेशा एग्जाम में आता है, और कभी कभी 10 मार्क्स में भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर मार्जिनल कॉस्ट और कॉस्ट फंक्शन को, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2000 अगस्त 2024 का, तो अब वहां पर आप ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के क्वेश्चन को 10 मार्क्स में देख सकते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन 10 मार्क्स का तो नहीं है, लेकिन 5 मार्क्स का जरूर है, 5 और 4। तो ओके, तो 5 या 4 मार्क्स में मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, लर्न कर लीजिए। इजी टॉपिक है, नॉन मैथ वाला बच्चा भी इसको सीख सकता है, कर सकता है। ओके, तो बस मतलब आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, यू लर्न द टॉपिक फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर मुझे यहाँ से चीज़ समझनी है, या फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, कोई क्वेरी माइंड में आ रही है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, ऐसे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ओके, मैं अब ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। सो टेक केयर, लव यू, बाय बाय।